So once again, good morning all of you. This is your course instructor Kushwant Patnani. We have met for uh, some doubt clearance session. So let us start off with the same. We'll start with one question which has been shared by one of you. Um, the question is given here. Yeah. So have a look. We have two blocks. The question says there are two blocks, A and B. Let's make a line for them each. Right? They are kept side by side. Let's say this is block A and let's say this is block B. Right? Now it says that two blocks A and B have initial velocity V and 0 respectively. Okay. So we'll have V. So let's say this is A and this is block B. They have initial velocities as V and 0 respectively, right? Now it says that block A moves at a uniform speed. That is, its speed does not change. So even after some point of time, when A reaches another point, let's say over here, okay, let's say at some time t, when block A reaches here, its velocity does not change. Whereas, what is the case with B? When B, after some point of time, must be, let's say, over here. Why have I done that? I'll tell you in a short while. So, let's have now yeah, let's say now B has reached some other position which is much more than A. Why have I done it? Because it is being said in the question that block A moves with uniform speed, whereas block B moves under a constant acceleration. Acceleration means the speed of B is constantly increasing. So after some point of time, when we observe them, let's say at time t, we might find A lagging behind, whereas B ahead of it, because B has an acceleration A, whereas A has no acceleration. So its acceleration is 0, whereas B has some acceleration, which is A. Now it is being said, find the maximum possible separation between the two blocks. Maximum possible separation. Right, so good evening. This is your course instructor Kushwant Patnani. Let us start off with the session. And here we are beginning with the revision session. And here is the whiteboard. So, as we had understood that at point T, the velocity of block A remains the same, whereas velocity of block B must be different. So let's say it is a new velocity. I'll name it as V naught. Right? Now let us see what is the distance that has been traversed by them in this time t. So for block A, have a look. For block A, the distance traversed. So can you tell me, Soham, that Swami, that how do we write the value of displacement in terms of A and T when you talk about constant acceleration equation motions? Yes, kinematic equations. Tell me the second equation. Yes. The S is equals to ut plus half at square. Yes, Soham. You there, Soham? Okay, wait a minute. Yes, sir. Yeah. Yes, Soham, tell me. The S is equals to ut plus half at square. S is equal to ut Ut plus plus half half t at square. right? Now apply this equation one by one for both particles, or for both blocks, let's say A and B, right? Now we'll denote, let's say, displacement by traversed by A as xa. What is the acceleration of A? V 0.
acceleration of A is, 0, 0. right, acceleration of B is given as A. So let us take acceleration of B as A, acceleration of A is 0. Now how about S for A? Yes, tell me. Vt plus half into 0 t T square, square. correct? Yes, sir. So the value of displacement by A is Vt, whereas what about the value of displacement for B? Yes, tell me Soham. Half 80 square. Because initial velocity is Yes, 0, sir. 0. so we'll have ub is equal to 0, right, plus half ab t square, and ab is nothing but a, so you'll have half a square, half at square is the value of xb. Now what is xb and xa? Marking it here. Have a look. This, the one which I have marked in orange, this is nothing but xa, that is the displacement of A. Whereas what about xb, the one which I'm going to mark in brown, this one, this is nothing but xb. Now what is the difference between them? This zone, right? Correct, Soham? Yes, sir. So you will have the maximum possible separation. So let's find that at point, at time t, what is the separation between them? The separation between them is xb minus xa, right? Tell me the value. Half 80 square Half at square minus VT. minus vt, right? Now when you have this, right, now when you have this expression, now this is the amount of separation, right? Now let me say I let's denote this by s. S is equal to half at square minus vt. What kind of equation is this, Soham? Mm, Can you give me a hint about what is it, or where did it come from? Where did it come from? We know, like, can you relate it to some other known form of equation? Yes, tell me. Try to relate it. Yes, go ahead. Kinematical equation. Think about it. Think about it. Don't be too in a hurry to answer. Think about it. Take your time. Take a minute and think. And so everybody will do. So Soham, Tike, Dheer, Ronak, try to think that what kind of equation is this, or have you heard about it before? And raise your hand. Yes. Once you have thought about it, raise your hand. Okay. Let me tell you. This is the equation of a parabola or a quadratic equation. Oh, There are two types of parabola. If you talk about parabolas in terms of y, one is called as ax square plus bx plus c, right? And the other may be called as x is equal to ay square plus by plus c. What's the difference? The one which I have written as, let me show them here. So let's say I'll draw this as the graph, right? So let me draw all four quadrants very well. Will help you all understand. Right. So have a look. So a parabola which is directed, which is open upwards this way, right? This one and which is, which has this axis. I'll draw it again here. Whose axis is vertical, such parabola. If you draw it, maybe with a different color pen. Yeah, have a look. So a parabola with a vertical axis, right? Whether it's open upwards or it's open downwards, this way, has the equation of the form
has the equation of the form y is equal to ax square plus bx plus c, such that a parabola which is open upwards is having a is equal to or a positive, that is greater than 0, whereas a parabola with its opening downwards is having a negative or less than 0, right? Now how about the parabolas, other type of parabolas, that is the one which we had written, parabolas which are having this horizontal axis, having horizontal axis as their axis of symmetry. Basically this line, when a parabola has this particular line, such lines are called as axis of symmetry for a parabola. About this axis, the parabola is symmetrical. So axis of symmetry. So about this axis, the parabola is symmetrical. So let's say we are talking about this rightward parabola. This will have both of them will have the equation. I'll write it with red. The equation is x is equal to ay square plus by plus c. Again, this one will have a positive, this one will have a negative. Now write this down, and more importantly, take a minute and absorb whatever I've told you. Yes, go ahead. Try absorbing whatever I have told you. Yes, go ahead. Understood well? What's the message in this page? Everyone, Ronak, Dheer, Soham, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. right? All four of you understood well Yes, that sir. these Yes, four sir. are Yes, sir. equations of some standard parabolas, right? Which are either oriented vertically or oriented horizontally, such that their values of A may be positive or negative, right? Depending on that fact, they may be opening upwards or opening downwards. Easy to remember? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Now, have a look at the equation which we had got. What kind of equation is it? See, we have, let's say this is y, right? This is x square, while this is x. So this is the equation of the sort y is equal to a x square plus bx plus c, where a is equal to, like our a of the equation, let's name it as capital A. Let's take this as ax square plus bx plus capital C. Now this a is nothing but half of a, that is half of acceleration, whereas this b is equal to minus of b, whereas this c is 0. Relatable? Yes, sir. Correct. Yes, sir. Now this parabola is opening where? Upwards or downwards? A is positive. See, A is positive. Positive. So where is the parabola opening up? Tell me. Upwards. Sir, upwards. Upwards, right? So, Soham, can you confirm and tell me what's the answer for this question given to you in that whatever video screenshot you have sent me? Yes, sir. Just a minute. Yeah. In the meanwhile, please jot down whatever I've written on the board. Yes, class. Get going.
Okay, don't worry, don't worry. Have a look. Soham, are you there? So meanwhile, Soham returns. We'll take up a question. So I think this was the question which was sent by Ronak. Yeah. Sir, Yes, Soham, tell me. sir, they have got T is equals to V upon A, and S relative they have got V square upon 2A. Something like this. Yes. So what is this answer basically? Because the question says find the maximum possible separation between the two blocks. So is this the separation that they're reporting? Yes. Okay. So see, now there are two ways of solving this question, right? One is the one which we just told, that, yeah, just a minute. Yeah, so the question says find the maximum possible separation between the two blocks. What is this time, Soham? What is this time that they're reported? Sir, he told us, means he explained that when their velocity, both their velocities will be equal, that time they will have the maximum separation. That's why it took that time when their velocities are equal. But I didn't understand that when their velocities are equal, how their separation will be maximum. Okay, right. So I'll do one thing. The perspective in which they are trying to convey the question or whatever the concept to you, I'll see that question. Send me the which basically which part of the video they are talking about. So I'll have a look at it and I'll get back to you. Or you can do even better things. Whatever new screens they write, right, just take a screenshot of it and send it to me. So I'll record in my voice and send it on the group, some extract of what they're trying to speak. I'll solve that question and send it to you on the group. Don't worry about it. Their perspective, right? This is the my perspective to the question. This is the perspective clear until now? पहले ये बताओ, यहाँ तक clear है Yes, सुहम? sir. Clear There है, was right? yes. है ना कि हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने कहा कि दोनों ब्लॉक का हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फ्रॉम इनिशियल टाइम, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि दोनों इनिशियली एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं. एक ब्लॉक के लिए वेलोसिटी इज v while the other block has a constant acceleration a. तो हमने दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, राइट, एंड रिटन इट इन दिस मैनर, राइट. Yes. एक काम करके देखते हैं. अब हम क्या करते हैं, आप लोगों ने याद है पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमा का फंडा अपनाते हैं, राइट? So Yes. let's say Yes, sir. we have s given as a function in t. So we'll write half a t square minus vt. Let's differentiate it with respect to t. Tell me what you get. A by 2 into 2T. 2t minus v, right? Yes. Tell me what is the value of v if you, or what is the value of t if you take ds by dt as 0? Yes, T is equals to V upon A. right? T is equal to v by a, correct? Yes. Now try substituting. See here, they have also got t is equal to v by. Now try substituting. And why did I do this? Because we know that when any function, say y, is a function in x, or it is given in terms of x, it can be anything, sine x, cos x, or maybe tan x, or x square plus x minus 1, any form, right? Whenever y is given in some function of x and we want to find that when is dy by dx 0, so dy by dx can be 0 either at maxima or at minima. Have you read this, Soham? Yes. Yes. Right. So we know that at the maximum point, dy by dx is 0, as 0. well as at the minimum point dy by Minimum dx point. is 0. Correct? Now we Yes. had this equation s is equal to, I'll draw a partition. Yeah. We had this equation that s is equal to, I'll recheck it. It was half at square minus vt. See, half
at square minus vt, right? Now, what did we do? We had to find out the maximum value of this S curve, right? Or the minimum value of this X curve, whatever. Now, in order to find out the maxima or minima, what is the technique that we have learned just now? Tell me, Soham. So that the difference That their is 0. differential should be equal to 0, right? 0. So let's Yes, sir. take the differential. We got it as 2at upon 2 minus v. Let's equate it to 0. So we got at minus v is 0, and therefore we got t is equal to v by a, right? So this is that time. What does this imply? This is that time at which S is attaining its maximum or minimum value, right? Clear on this point? Yes, sir. Now substitute this over here in order to get that value of X, either maximum or minimum. Now let's see what does it come out to be. Half a into t square, that is v square by a square, Square. minus v into t, that is v by a. So we get v square upon 2a minus v square Square by a. right? So it comes out to be minus v square upon 2a, correct? Right? Now, what does this imply? What does this imply? This implies that the relative separation between them is negative. So negative means what had we taken? We had taken that S relative is equal to, see here, xb minus xa. We had thought that b has moved ahead of a, and assuming that we had taken this as xb minus xa, and it comes out to be minus v square by 2a at time t is equal to v by a. So what does this mean, Soham? That at time t is equal to v by a, b is behind a. Can you understand this? I'll repeat. Yes, sir. See here, at t is equal to v by a, if I get v xb minus xa is equal to minus of v square by 2a, it means that b is behind a, right? Because the displacement is negative, coming out to be negative. What does it mean? That a is ahead of b by how much distance? V square by 2. Clear? Clear on Yes. this point? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Right? So basically what we had got here was the minimum value of S here. When we take a negative of it, what we get here is the maximum value of S over here. Why? Because see here, initially what was B minus A, right? Now it has turned to A minus B. So this value, which was the minimum of xb minus xa, is actually now the opposite of it, or the negative of it is the maximum of xa minus xb. Are you able to digest this fact? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Okay. So the separation is how, means दो ब्लॉक्स के बीच में साइड बाय साइड सेपरेशन है या फिर आगे पीछे सेपरेशन है? आगे पीछे सेपरेशन है ना. देखो क्या हो रहा है, दोनों तेजी से भाग रहे हैं, एक की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन दूसरे की वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब, सो आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट ओवर हियर. या वेट अ मिनट. सी, अभी आई टेक 2 पेन्स. ठीक है, ये 2 पेन्स हैं, यहां देखना साइड बाय साइड है, ये दोनों साइड बाय साइड है. ठीक है, अब क्या करती है, दोनों भागना शुरू करते हैं. इस ब्लू वाले की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये ए वाले को क्या होता है देखना, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके पास, क्योंकि रेड वाले के पास एक्सेलरेशन है. देखना. सो क्या हो रहा है, सो बेसिकली दे आर अहेड ऑफ ईच अदर इन दिस प्लेन. Able to? Yes, sir. They are side by side, they are placed side by side, and we are trying to find out which one is ahead of the other and by how much distance. I will repeat, which one is ahead of the other and by how much distance, right? Clear with the fact?
Yes. Two things, one is ahead of the other, and by how much distance, that is what we are interested in finding out. Right? Clear on this? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, 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 Soham. Tell me. तो फिर तो एक ऐसा टाइम है, मतलब वो उसको क्रॉस करके आगे जाएगा, तो फिर अभी वो आगे गया तो उनमें डिस्टेंस तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। देखो, बढ़ते जा रहा है, और कौन सा ब्लॉक एक दूसरे से सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ देखो, फिर से देखना, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, अभी हमारे पास क्या आया आंसर? एक्स ए माइनस एक्स बी आया या एक्स बी माइनस एक्स ए पॉजिटिव आया? कौन सा पॉजिटिव आया? एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए माइनस एक्स बी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ए इज अहेड ऑफ बी, करेक्ट? यस। ए इज अहेड ऑफ, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है सोहम? देखो, ए की तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, हाँ या ना? लेकिन बी के पास तो एक्सेलरेशन है, तो बी को तो आगे होना चाहिए। यस। इसका मतलब है कि जरूर यहां ऐसा हुआ है कि शुरुआत में, सुनना ध्यान से, शुरुआत में दोनों एक दूसरे से ऐसा समझो रेस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत की वेलोसिटी के बारे में मुझे बताओ सोहम, शुरुआत में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की या बी की? ए की। ए की। इसका मतलब शुरुआत में बी पिछड़ जाएगा और ए आगे हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। क्लियर हो रही है बात? शुरुआत में ए के पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन बी के पास वेलोसिटी कैसी है? जीरो। तो बी अपनी जीरो की वेलोसिटी से धीरे 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 तेज हो रहा है, जबकि ए के पास ऑलरेडी तेजी है, हाँ या ना? यस सर। भले बी के पास एक्सेलरेशन है, माना, लेकिन ए के पास क्या है? वेलोसिटी। और किसी बॉडी को आगे ले जाने का सबसे पहला रोल किसका होता है? वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का? वेलोसिटी का। गाड़ी अगर आगे बढ़ रही है या ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो उसका कारण है वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी को बढ़ाने का काम एक्सेलरेशन कर सकती है। तो बी ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन तो है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। तो जब दोनों ब्लॉक्स ने चलना शुरू किया, क्योंकि ए के पास पहले से वेलोसिटी थी, तो वो इसीलिए बी से रेस में आगे बढ़ गया, लेकिन क्योंकि बी के पास एक्सेलरेशन थी, तो जरूर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ए बी से आगे हो चुका था, और अब ए की एक्सेलरेशन ने कमाल करना शुरू किया। क्या कमाल किया? पहले दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस बन गया था, अब ये कम होता गया, और बी क्या होता गया? आगे निकलता चला गया। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्या कि जब दोनों ने रेस करना शुरू किया तो फाइनली तो ये बिल्कुल ही होगा, क्या कि जैसे, मेकिंग इट अगेन, दिस इज ए, दिस इज बी, इनिशियल वेलोसिटी v, whereas initial velocity 0, there is no acceleration here, whereas this one has acceleration also. तो शुरुआत में तो ये हुआ कि a आगे निकल गया, और b पीछे रह गया, लेकिन b के पास क्या थी? एक्सेलरेशन थी। तो अब जरूर कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब a b से काफी आगे निकल चुका है, और इस एक्सेलरेशन को हमने और इस सेपरेशन को हमने नाम दिया S max, यानी कि मैक्सिमम सेपरेशन इन द वे सच दैट A इज अहेड ऑफ B। मैं ध्यान से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, A इज अहेड ऑफ B। जरूर ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी, हाँ या ना? और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद B अपनी एक्सेलरेशन का कमाल दिखाएगा, और धीरे धीरे इनके बीच में डिस्टेंस कैसा होने लगेगा सोहम? स्मॉल, हाँ या ना? यस सर। राइट। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां दोनों के बीच की सेपरेशन हो चुकी होगी 0, मतलब दोनों समांतर चल रहे होंगे, राइट? यस सर। और थोड़ी देर के बाद फाइनली ऐसा होगा कि B का जो वेलोसिटी है वो क्योंकि बढ़ते चला जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, वो A को सुपरसीड करके फाइनली बहुत बहुत आगे चला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम सेपरेशन कहा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम सेपरेशन इन अ वे that B is ahead of A, अगर इस एंगल से सोचोगे तो मैक्सिमम सेपरेशन तो इंफिनिटी है, हाँ, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ yes, नहीं बताया सेपरेशन तो बढ़ते जाएगा, लेकिन
अगर मैं मैक्सिमम सेपरेशन को इस एंगल से सोचूं, मैक्सिमम, ये था मैक्सिमम सेपरेशन को सोचने का एक एंगल, Yes, sir. मैक्सिमम सेपरेशन को सोचने का एक एंगल, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम सेपरेशन को सोचने का दूसरा एंगल देखूं, जिसमें कौन किससे आगे है, ए बी से आगे है, ए बी से आगे है अपनी खुद की इनहेरेंट इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, ऐसे केस में दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। Yes, इज द sir. पर्सपेक्टिव, इज द पिक्चर क्लियर नाउ? अब पिक्चर क्लियर है आंखों के सामने? सो हम Yes, sir. अच्छे से, Yes, sir. Yes. everybody else, Yes, sir. Yes, sir. हीर, ऋषि, Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रौनक, Yes, sir. anybody any queries पूछ लो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, वेरी क्विक इंसाइट इनटू अदर क्वेश्चंस यू ऑल हैव आस्क्ड। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर रौनक ने कि अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, राइट, एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। सो कैन एनीबडी ट्राई, धीर ट्राई करो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? Yes, sir. क्या करेंगे, सारे बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस में एक बात याद रखेंगे कि 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx when this is nearly, है ना, not always, this is not the exact value, this is near value, when x is very very less than 1, right? Now you have, जब भी कभी ऐसा दिया जाए तो इसको ऐसा लिखो, देखो नियरेस्ट होल नंबर के टर्म्स में लिखो, ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर के टर्म्स में। सो आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ 100, देन आई टेक 100 कॉमन आउट ऑफ इट, सी आई टेक 100 कॉमन आउट ऑफ इट, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. अब ये हाफ को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो अगर ए बी का पावर x है, इसको खोलते हो तो क्या आता है, ax इंटू बी एक्स, राइट? Yes, sir. तो अब ये क्या हो जाएगा, 100 का पावर 1/2 टाइम्स ऑफ 1 plus 2/100 का पावर 1/2, right? Then you have this as 10 plus 1/2 into 2/100, correct? So you have 10 times of 1 plus 1/100. Clear हो रहा है concept? Yes, sir. So you'll have 10 plus 10/100, that is equal to 10.1. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. पक्का? देख लो एक बार, ध्यान से एब्जॉर्ब कर लो एंड देन लेट मी नो। हमने क्या किया कि पहले एक टर्म को कॉमन लिया, रूट लगाया, फिर वापस उस टर्म को अंदर ले गए एंड आंसर कैलकुलेट किया। Sir. हाँ बोलो बोलो। Sir, वो 10 कैसा आया, एक बार समझाओ ना। 100 का पावर 1/2 मतलब 100 का रूट कितना होता है, ओके ओके सर, है ना? सर तो हम डायरेक्टली 1 और 2 का रूट लेके नहीं कर सकते इसमें? फिर से बोलो। सर मतलब आपने अभी जैसे किया 100 का रूट इज 10, तो सर हाँ। क्वेश्चन में भी डायरेक्टली 102 का रूट लेके कर सकता है क्या? अरे 102 के रूट लेने का ही तो ये तरीका है जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तुम ये 102 का रूट निकालने बैठोगे अगर स्टैंडर्ड तरीके से, तो तुम्हारे 5-10 मिनट तो इसी में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इसको करने में हमको आधे मिनट से भी ज्यादा नहीं लगा, हाँ या ना? यस सर। कहने का मतलब है कि बाइनोमियल थ्योरम बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप ऐसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को कैलकुलेट कर सको। जैसे एक और क्वेश्चन बनाओ, यहाँ बनाओ इसको 99 का पावर 1/3, देखो बना सकते हो क्या? या इसको भी 1/2 ले लो, कोशिश करो, कैसे बनाओगे? क्या लिखोगे बोलो? 100 माइनस 1 का पावर 1/2, राइट? यस सर। क्या हो जाएगा? 100 को कैसा ले लेंगे? कॉमन, हाँ राइट? तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/100 का पावर 1/2 और यहाँ 1/2 कैसा हो जाएगा? 10 इंटू 1 माइनस 1/2 अपॉन
100, करेक्ट। Yes, sir. अब क्या होगा, 10 को अंदर ले जाओ, so you'll have 10 minus 10 by 2 into 100, that gives me 10 minus 1 by 2 by 10, that is 10 minus 0.05, that gives you 9.95। तो ये आएगा आपका आंसर 9.95 जब आप क्या करोगे 99 का रूट लोगे। इजी था एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है Yes. कि हमने क्या किया है, हमने रूट Yes, किया sir. है या फिर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स पावर लिया है जो अदरवाइज डिफिकल्ट होता निकालना, राइट? तो हमने बायनोमियल के जरिए उसको इजी कर दिया। सो बायनोमियल थ्योरम इज इन फिजिक्स विल बी यूज्ड टू easify your entire calculation aspect। क्लियर हो रहा है जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आएगा? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes. अब अगला क्वेश्चन देखो, और रौनक आपके जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है ना वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखो तो मैं उनमें से एक सॉल्व करता हूँ, दूसरा आपसे अपने आप बन जाएगा, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चन क्या लिखता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि y is a value given as 4 upon sin alpha plus cos alpha, and then it says that what is the minimum value of y, मतलब y minimum कितना है। रौनक मुझे एक बात बताओ, y को मिनिमम होने के लिए अगर y बना है 2 बातों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर मुझे y को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर, अगर सब इसका न्यूमरेटर क्या है एक्सप्रेशन का 4, हाँ या ना? Yes, sir. तो रौनक 4 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Constant है, sir. कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन d के बारे में बताओ, d अल्फा पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? Depend करता है. डिपेंड करता है। अगर अल्फा पे डिपेंड करता है तो वे वेरिएबल है या कांस्टेंट है? Sir, variable. वेरिएबल है, बहुत बढ़िया। तो अगर d वेरिएबल है और मैं कहता हूं मुझे y को मिनिमम करना है तो d को कैसा करना पड़ेगा? Maximize. मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मेरे पास सपोज है राइट डिनोमिनेटर एज लेट्स से z, so I will have z is equal to sin alpha plus cos alpha, Yes, sir. right? Now after this what is my stake? After this my stake is, in order to find out the maximum value of z, what am I going to do? Tell me. dz by d alpha, right? Because what have we just learned, that any variable, say y, when it's depending upon x, in order to maximize or minimize it, what do I have to apply? dy by dx. Differentiate and then equal to 0. Absolutely correct। तो अब डिफरेंशिएट करो, रौनक बोलो sin अल्फा का कितना हो जाएगा? Cos alpha. अल्फा, और cos Minus का sin. कितना हो जाएगा? माइनस Minus sin alpha. अल्फा। इसको 0 से इक्वेट करो, क्या हो जाएगा बोलो? Cos alpha is equal to sin alpha. Cos alpha is equal to sin alpha, and we'll have tan alpha is equal to 1. Yes, sir. Then we'll have alpha is equal to 45 degree या pi by 4 radians, correct? Yes, sir. तो एक बार तुम्हारे पास अल्फा आ गया, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये वो वैल्यू ऑफ अल्फा है जिसके लिए z कैसा हो रहा है? बोलो, जिसके लिए z कैसा हो रहा है? Maximum. तो जब z मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब y कैसा हो रहा है? Minimum. हाँ या ना? तो वो y मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर लो, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री डाल के। क्लियर है अब? Yes, sir. है ना, सिंपल था। Yes, sir. ऐसे ना आप लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे जब भी कभी क्वेश्चन में। देखो यहाँ वाले जो अभी सोहम ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर भी मैक्सिमा मिनिमा का फेर था, हाँ या ना? और यहाँ पर भी हमने डिफरेंशिएट किया। उसी तरह से तुम्हारे इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमा मिनिमा का फेर था और Yes, यहाँ sir. पर भी हमने डिफरेंशिएट किया। तो ये बात आप लोग अपने साथ गांठ बांध लो, क्या कि फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमा की बातें की जाएगी या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो ऐसे केस में हमेशा आपकी ड्यूटी है ये देखना कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सपोज ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेट्स से इस केस में x। तो हमेशा मुझे फाइंड समझना है कि अगर मुझे y की मैक्सिमम या y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरा क्या फर्ज बनता है रौनक? dy by dx को dy कैसे? by dx 0. Yes, sir. याद रहेगी ये बात? Yes, sir. पक्का? और इसका Yes, sir. डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही रहता है कि एट दैट वैल्यू जिस पे y मैक्सिमम अचीव कर रहा है
उसी वैल्यू पर अगर आप d2y/dx² मतलब सेकेंड डिफरेंशियल निकालोगे तो वो आना चाहिए नेगेटिव, और उसी वैल्यू पर जिस पर y मिनिमम आ रहा है वहां d2y/dx² कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। Positive. करेक्ट? क्लियर हो रही है Yes, बात? sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन भी बन जाएगा जो आपने मुझे भेजा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, आई ड्रॉ इट हियर, हैव अ लुक एवरीवन। So you have next question given as y is equal to x upon x plus 1, ठीक है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। You have asked that sir how will we calculate dy by dx? इसके लिए there is a formula. What's the formula? d by dx of u by v is given as, tell me, v का स्क्वायर, right? Denominator square, denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator, right? ये फॉर्मूला सीखा है क्या रौनक इसके पहले? Yes. ठीक है, इसको एक बार अपने पास मार्क कर लो। जहां मैंने u डैश लिखा है ना, इस u डैश का मतलब है रौनक बच्चा, इस u डैश का मतलब है du by dx, जबकि इस v डैश का मतलब है dv by dx। याद रहेगा? Yes, sir. अब लग जाएगा फंडा कि हमारे केस में u कितना है x और v Ye- कितना है x प्लस 1, राइट? तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या Plus आता one. है। Yes. d by dx of x by x plus 1 will be equal to denominator का स्क्वायर, राइट? डिनोमिनेटर into differentiation of numerator 1, x का differential 1, right? Sir. Minus One of numerator into differentiation of denominator मतलब into one. into 1 मतलब x plus 1 का differential is 1, absolutely Yes, correct। sir. तो ये क्या हो जाएगा देखो, x plus 1 minus x whole by x plus 1 का whole square, तो आपके पास आंसर आ जाएगा Square. Yes, sir. 1 upon x One plus upon 1 का whole का square। इस x आंसर plus को one. एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. राइट, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो Yes, हमारा sir. आंसर आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इजी था, आया ना? Yes, sir. कि हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना था एंड सिंपली सब्स्टिट्यूट करके वी गॉट द आंसर। आई थिंक आपने 2 और क्वेश्चन दिए हैं, राइट? तो आपका एक क्वेश्चन है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखो, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से एक ग्राफ दिया है। ये है आपका स्पीड रिप्रेजेंट करने के लिए वाई एक्सिस, और ये है आपका टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस। देखो क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, हमें ये बताया गया है कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो स्पीड है दैट इज 20, ऑफ कोर्स द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एंड over here time varies as 0, 5 and then over here as 10 seconds। अब हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज एज सिंपल एज डिफाइनिंग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट? Minus initial time. Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, इस जगह पर सेम, हाँ या ना? 20. राइट, Yes, 20। yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। और ऐसा कितनी देर में हो रहा है? 20. 10 सेकेंड्स में, दैट इज 10 माइनस 0। तो आंसर कैसा आ जाएगा? Sir, 0। zero. क्लियर हो रहा है? Zero. स्ट्रेट Yes, sir. फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ क्या? एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अगला देखो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है इन अ वे दैट इट्स position varies with time as x is equal to 4 minus 2t
प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब आपको क्या बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल वेरी विद टाइम एज, स्पीड बतानी है, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन है, तो जब भी आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगी, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी क्या आएगी, बोलो 0 माइनस 2 प्लस 2t, हाँ या ना, प्लस 2t। यस सर, करेक्ट। यस सर। अब इसको प्लॉट करो, ये कैसी लाइन है, देखो ये एक लाइन है ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, करेक्ट, जहां पर m यस कैसा है सर। 2, राइट, और c कैसा है -2, 2 राइट, -2। where m is यस called सर। as slope whereas c is called as y-intercept, am I clear? इंटरसेप्ट। यस सर, यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यहाँ पर एक y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक। तो अब देखना ध्यान से, ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है मतलब जरूर लाइन यहाँ पे कट करेगी, ध्यान से देखना, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो मुझे बताओ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट, दिस इज पॉइंट 0, यहाँ Yes, पर sir. ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है या नीचे की तरफ y कैसा होता है, नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव। लाइन को कहाँ कट करना चाहिए y एक्सिस को, पॉइंट A पर या पॉइंट B पर, बोलो रौनक। बी पर सर। B पर, अच्छा, इसका स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन को ऐसे जाना चाहिए, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, या फिर लाइन को ऐसे जाना चाहिए पॉजिटिव स्लोप के लिए, बोलो रौनक। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है क्यों सबको, है ना, यस सर। पॉजिटिव स्लोप की लाइन है तो वो राइजिंग होगी, जबकि जो मैंने ऑप्शन नंबर 1 में बनाया है वो कैसी लाइन है, फॉलिंग, नेगेटिव। यस सर। राइट, फॉलिंग लाइन या फिर नेगेटिव स्लोप की लाइन। अच्छा, अब सपोज मैंने ऐसी लाइन बना दी, ठीक है, सपोज ये पिंक वाली लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेट मी रब द अदर वन, राइट, क्लियर हो गया ये। यस सर। अब ध्यान से सुनना, ये तो हुआ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, देखना मैंने क्या बनाया है, जो हमने यहाँ बनाया है, हमने क्या किया था, v को y ले लिया था और t को कैसा ले लिया था, x, एक्स। तो यस सर। बेसिकली दिस इज v एंड दिस इज t, राइट। यस सर। अब ये बात हमेशा याद रखो, क्या, कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्पीड कैसी होनी चाहिए, बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पीड होनी चाहिए पॉजिटिव। तो आपको एक बात समझनी है बच्चा लोग, क्या, कि जब भी ये प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है और आपने ग्राफ को बनाया हुआ है, आपके सामने ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप इस ग्राफ का क्या लोगे, इमेज लोगे, क्या लोगे, इमेज, किस एक्सिस के अबाउट, टी एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, टी टी एक्सिस एक्सिस। अबाउट, इमेज अबाउट टी एक्सिस। इमेज निकालना जानते हो क्या, सिर्फ इस Yes, sir. ग्राफ को, ये जो पार्ट है बी सी, इस ग्राफ को इन्वर्ट कर दो जस का तस ओवर हियर, ऐसा कुछ हो जाएगा, यस सर। हाँ या ना। तो अब आपके पास फाइनल ग्राफ ऐसा आ गया, देखो, सो इफ this is y and this is x axis, the speed, because speed can only be positive, speed negative हो सकती है क्या रौनक, नो सर। no, because it is a scalar quantity, so Scalar it quantity. can be negative, therefore basically डायरेक्शन डिनोट करने के लिए स्पीड में कुछ होता ही नहीं है, स्पीड में जो भी होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। यस राइट, सर। इसीलिए हमने इसका इस तरह से डायरेक्शन या फिर इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया। क्लियर हुआ, क्लियर हो यस रहा है सर। कि हमने इस ब्लू, इस पिंक वाली लाइन का, ये तो लाइन होल्ड ही नहीं कर रही थी, इस Yes, sir. पिंक वाली लाइन का इमेज ले लिया अबाउट दी टी एक्सिस या टी एक्सिस, एक्स एक्सिस। राइट, यस सर। पक्का क्लियर है, यस सर। राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे, सपोज ये हमारे पास एक कर्व ऐसा दिया हुआ है, ये कर्व है आपके लिए फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब इस कर्व को कन्वर्ट करो सब लोग स्पीड वर्सेस टाइम में, यस, कैसे करोगे, जो पार्ट नेगेटिव हो वो क्या हो जाएगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यस सर, ऊपर आ जाएगा। पॉजिटिव, हाँ या ना? यस सर, ले आओ ऊपर, जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव यस सर, पॉजिटिव साइड पे सिर्फ ये वाला साइड कैसा आ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। यस सर, राइट? फिर से पॉजिटिव यस पार्ट ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये यस वाला सर, जो पार्ट नीचे था वो कहाँ जाएगा, ऊपर की, ऊपर। राइट? फिर से इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव है इसलिए ऊपर रहा, ऊपर जाए, नेगेटिव है वो कहाँ आ गया, ऊपर। ऊपर। क्यों किया है सामने, क्यों किया रौनक, व्हाई डिड वी डू इट? सर क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। हो गया क्लियर अब बच्चा? यस सर, अच्छे यस से सर, सारे डाउट्स क्लियर? यस सर, चलो ठीक है। स्वामी आपके डाउट्स क्लियर हो गए थे बच्चा? Yes, sir. ठीक है। बाकी बच्चों को जो भी इस वक्त सेशन में है, एवरी वन ऑफ यू, सो हम टिके, वी हैव रौनक, वी हैव हीर, वी हैव ऋषि, सबको क्लियर है बच्चा लोग? अच्छे Yes, से sir. यस सर, जो भी डिस्कस किया सब क्लियर है? Yes, sir. यस सर, Yes. ओके देन क्लास, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी Thank बेस्ट। you, आप sir. लोग अपनी सेहत का ख्याल रखो। सर आप और प्रोजेक्टाइल Thank you. डिस्कस कर सकते हो? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप प्रोजेक्टाइल डिस्कस करोगे? सो प्रोजेक्टाइल में कुछ खास डाउट था क्या आपको? लेट मी नो एनीथिंग इन पर्टिकुलर जो आपको समझना था। द कॉन्सेप्ट्स है सर। तो वो हो गया है, कवर हो गया है क्लास में। Yes, Yes, sir. sir. Cover हो गया. सर पर थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो रहा है। देखो, आई विल गिव यू, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चा, तो एज आई वाज टेलिंग कि आई कैन गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर सेइंग, देखो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन टू डायमेंशंस, कुछ इस तरह से कि एक बॉडी, सपोज को हमने किसी एक रैंडम एंगल पे प्रोजेक्ट किया, लेट्स से u वेलोसिटी से, और वो एंगल है थीटा। अब क्योंकि अर्थ हमेशा किस तरफ एक्सेलरेशन लगाती है रौनक? डाउनवर्ड्स डाउन। टुवर्ड्स सेंटर। इसीलिए इसीलिए we have a is equal to minus g, a is equal to minus एनएसजी। right? Now because a is minus g, हम क्या करेंगे, हम ये समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो कैसी होने लगेगी। यहाँ पर मुझे बताना, ये जो u है इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, राइट? यस सर। और एक कंपोनेंट कैसा है, राइट की तरफ, राइट? करेक्ट। एक कंपोनेंट इज टुवर्ड्स राइट और दूसरा कंपोनेंट इज टुवर्ड्स अपवर्ड्स, दैट इज इन द Yes. पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ये जो बॉडी है ये हॉरिजॉन्टली जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से क्या करती रहेगी, मूव। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो vx है वो किसके इक्वल रहेगा, ux के इक्वल रहेगा। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। जबकि द सेम विल नॉट होल्ड फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में शुरुआत में तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यस लेकिन सर। आप लोग को याद है मैंने आप लोग को एक पॉइंट दिखाया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग हो तो वेलोसिटी कैसी होने लगती है, या स्पीड कैसी होने Decrease. लगती है, कम। ये Yes, sir. याद है क्या बात बच्चा लोग? यस सर। कि जब भी कभी आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग। याद है आप लोगों के लिए मैंने एक ऐसी क्लास लिया था जिसमें आप सब लोग थे, ए बी डी सभी ग्रुप एक साथ थे, इनफैक्ट शायद सी बी। वहां पर आप लोगों के टेस्ट के एक दिन पहले जब हम रिवीजन कर रहे थे, हमने एक पॉइंट लिखा था, रिकॉल करो, जहां जब भी कभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऐसे केस में स्पीड क्या होने लगती है, कम। क्या होने लगती है, कम, यस सर। राइट? तो अब क्योंकि स्पीड कम होने लगती है, क्योंकि स्पीड कम होने लगती है, तो अब देखोगे कि सपोज अगर डायरेक्शन, ये जो एरो है सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, तो देखो ऐसे वेरी करती है स्पीड। पहले स्पीड सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी और कम, फिर थोड़ी और कम, फिर थोड़ी और कम, फाइनली कितनी हो जानी चाहिए वर्टिकल जीरो। डायरेक्शन की स्पीड? जीरो। कौन सी स्पीड, वी वाई या वी एक्स? वी वाई। वी वाई। वी एक्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन 0. है ही नहीं। Yes, sir. बिल्कुल सही, राइट। देयरफॉर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो है लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या कहता हूं? हाईएस्ट Highest पॉइंट point ऑफ of द the projectile. प्रोजेक्टाइल, राइट। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसके लिए जो हमारे पास हाइट है, इसको मैं कहता हूं एच मैक्स, राइट, एच मैक्स। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उसको हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है जेनिथ। क्या होता है? जेनिथ। तो Zenith. अगर सपोज पार्टिकल ने अपना पोजीशन शुरू किया है t इज इक्वल टू 0 से 0. और वो हाईएस्ट पॉइंट तक आया है, यानी कि उस पॉइंट तक पहुंचने के टाइम को सपोज मैं कहता हूं टी जेड। क्या कहता हूं? टी जेड। तो ध्यान ध्यान देना, ये जो मैं ब्लू लाइन बना रहा हूं अब, यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम लगा वो कितना है? टी जेड। TZ. टी जेड। तो ये जो टाइम लगा टी जेड, इसको आप निकाल सकते हो। उसी तरह से इस एच मैक्स को भी निकाल सकते हो, राइट, एच मैक्स को भी Yes, sir. निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह से यहां देखना फिर से, आपको इस पार्टिकल को अगर यहां से इसके इनिशियल पॉइंट से, लेट्स से ए, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको सी बोलते हैं, जो एंड पॉइंट है इसको बी बोलते हैं। तो अब यहाँ ए से लेकर सी तक आया, फिर कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स बी, B. राइट। तो इस बी तक आने के लिए ये जो पूरा टाइम लगा, सपोज इसको मैं टी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? T. टी, ठीक है। अब एक और वेरिएबल लिख रहा हूं, यहाँ ए से लेकर बी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सपोज इसको मैं रेंज कहता हूँ। क्या कहता हूँ? रेंज। Range. तो अब Range. मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब किए, कौन कौन से? टी जेड और टी जेनिथ, राइट। जेनिथ तक की हाइट विच इज कॉल्ड एज H max. राइट। फिर उसके बाद मैंने बात की टाइम ऑफ Total फ्लाइट, time. Yes, sir. देन मैंने बात की रेंज की। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज, I will write this here. This is time to reach the maximum height, T h max. This h max तो clear हो रहा है. This is the value of y maximum. This is the total time. हाँ या ना? Yes, sir. और this is range. Range. अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? इनकी वैल्यूज होती हैं tz is equal to और t zenith is equal to, आपको याद है हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए मैंने आप लोगों को कुछ बातें लिखाई थी, बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या वैल्यू होती थी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए? 2u/g, याद आ U रहा by है? G. Yes, sir. अब उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी कहाँ होती थी? ऊपर की तरफ, हाँ या Yes, ना? sir. तो Yes, इस sir. वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? u/g, हाँ या ना? राइट। Yes, sir. तो अब यहाँ पर आपके पास टी जेनिथ जो है, वो टी जेनिथ, अच्छा, इसी की वजह से ये क्या था? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था। कैसा था? टोटल टाइम ऑफ Total फ्लाइट। time of तो flight. अब Yes. उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 2u. इवन इन अ 2D मोशन, जैसा 1D मोशन के लिए था, 2D मोशन में भी हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूलाज लगाएंगे। देखना, एच मैक्स यहाँ के केस में कितना होता था? U square by 2G. u square by 2g, एब्सोल्युटली करेक्ट, u square by 2g। वही चीज अब यहाँ के केस में कितनी होगी? u square by, Y square by 2G. क्लियर Yes, हो sir. रही है बात? अच्छा, उसके बाद जो t जेनिथ यानी कि ऊपर तक पहुंचने का जो टाइम है, वो नीचे के पहुंचने के टाइम के साथ कैसा होगा? सेम, Same. है या ना? Yes, sir. राइट। अच्छा, इस वजह से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 times of 2 जेनिथ, हाँ या ना? Yes, sir. बिकॉज ऑफ सिमेट्री, मतलब जितना टाइम लगा बॉटम से ऊपर तक आने में, उतना ही टाइम लगेगा वापस टॉप से बॉटम तक Yes, जाने sir. में, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर यहाँ t जेनिथ टाइम, तो यहाँ भी कितना लगेगा? Time. t जेनिथ टाइम, राइट। इसका मतलब t जेनिथ टाइम इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? u/g। एम आई क्लियर? Yes, sir. राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट द रेंज? तो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है 2 times of ux/g, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक और तरीके से, और उसको हम कहते हैं u square sin 2 theta upon g, Upon G. where theta is the initial angle of projection। क्या कहते हैं Yes, sir. इसको? Initial angle of projection. अच्छा, एक और बात सीखो,
ये बात है क्या कि इस तरह की प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, मतलब इस खास तरह के प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब बताओ तो रौनक। तो सेम लेवल पे रहेगा। हाँ, जहां से उछाला गया वहीं वापस आएगा। ऋषि, मुझे एक बात बताओ, आपको इस तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए डू यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी? ट्राई गिविंग द आंसर। यस, सोहम, टिके, आप बताओ। एक आसान तरीका है, देखो मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इसको याद रखना। y is given as x tan theta, right, times of 1 minus x by r। क्या कहते हैं? y, मेरे साथ बोलो सब लोग, y y is equal y to x tan theta times x of tan theta theta। 1 minus x by r। Yes बोलो, sir। फिर से बोलो, दोबारा बोलो इसको। y is y is equal equal to to x x of tan theta theta tan y theta minus x by r। याद हो गई? याद हो गई इक्वेशन, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है? क्यों Yes कह sir। रहा हूं? बिकॉज इसका एक यूज आने वाला है यहाँ पे, देखो इसका एक यूज आने वाला है यहाँ पे, देखना। अब tan थीटा क्या है? tan ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट? Yes sir। Yes sir। उसी तरह से ये r क्या है? अभी अभी हमने देखा, रेंज, range। राइट? अब इस इक्वेशन के जरिए अगर आपको ये इक्वेशन दे दी जाए ना, तो जितने भी ये पैरामीटर्स मैंने ऊपर लिखे हैं, ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स, इन सब को आप निकाल सकते हो। क्या कहा मैंने? अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, सपोज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे दी जाए, y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस और प्लस x, सपोज ये दे दी जाए, ठीक है? तो अब आप इसके जरिए सब निकाल सकते हो। सब से मेरा मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट, जेनिथ टाइम, range and maximum height as well as theta, tan theta and initial velocity का x component, initial velocity का y component and initial velocity also। ये बात क्लियर Yes हो रही sir। है? Yes ये sir। बात क्लियर हो रही है? Yes अब sir। कैसे ये आपको ट्राई करना है, इसको ट्राई करो और मुझे ग्रुप पे इन्फॉर्म करना इफ यू आर एबल टू डू दिस। इफ नॉट देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक? ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करो, अगर आपको ये दे दिया जाए कि इनिशियल वेलोसिटी इज सपोज 2i कैप प्लस 2j कैप, अब फिर से अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो ट्रैजेक्टरी की, टाइम निकाल Yes सकते sir। हो, टाइम जेनिथ निकाल सकते हो, फिर से h निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो, ux निकाल सकते हो, uy निकाल सकते हो और थीटा भी निकाल सकते हो, प्लस इनिशियल वेलोसिटी की नेट वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्लियर हो रही है क्या बात? Yes sir। ट्राई Yes करो, sir। ठीक है? मैं बताऊंगा नहीं, ट्राई करो, जो अभी मैंने नॉलेज दिया है उससे ट्राई करो। बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है कोई बात नहीं, आई एम देयर, ठीक है? Yes sir। एक अगली बात सीखो, प्रोजेक्टाइल मोशन ना बड़ा सिमेट्रिक किस्म का खेल है। मतलब जहां से जिस बॉडी ने जैसे अपना मोशन शुरू किया है, वहां पे वो बॉडी उसी तरह से वापस लौटती है, राइट? मतलब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से शुरू हुआ है, तो जब ये बॉडी वापस अपने ग्राउंड पर पहुंच रही है, तो ग्राउंड पर पहुंचते हुए देखो वो कैसे पहुंचती है। अगर ये इस पॉइंट से निकली है और यहाँ पर वेलोसिटी इज u, राइट, दिस एंगल इज थीटा, राइट, और वो इस जगह पहुंचती है सपोज, तो यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टैंजेंट, याद रखना, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is always tangent to the curve along which it is flowing। मैंने क्या कहा? Yes sir। फिर से बोलो, velocity of the Body body velocity is tangent to is the tangent to the। direction of the curve along which it is moving। याद रहेगा ये, Yes sir। है ना? इसको अपने पास लिख लो कहीं पर एज अ नोट, एक नोट बनाओ कि velocity of the body is tangent to the curve, है ना? आगे लिख लो, Yes sir। ठीक है? अच्छा, अब
जब ये बॉडी नीचे आई, बाय सिमेट्री मुझे बताना रौनक कि यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, या सुहम, टेल मी, सुहम टिके, यहाँ इसकी स्पीड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, u या कुछ और? यू होनी चाहिए। यू होनी चाहिए। क्योंकि सिमेट्री के कारण जिस स्पीड से निकला था वापस उसी स्पीड से वापस आएगा। यस सर। लेकिन फर्क ये होगा कि यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा था अपवर्ड्स, बस अब ये क्या करेगा, थीटा बनाएगा डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। वेरी एक्सीलेंट ऑन दैट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन को देखना चाहूं, मैक्सिमम एंगल को, तो कितना आएगा, थीटा प्लस थीटा कितना आएगा, इक्वल टू 2 थीटा। थीटा। वेरी गुड। तो कई बार इन सारी क्वांटिटीज को पूछने के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है, टेल अस द मैक्सिमम एंगल बिटवीन थीटा एंड थीटा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है, 2 थीटा की वैल्यू। क्लियर हो रही है क्या बात? यस सर। तो आप Yes, लिखो sir. अपने पास 2 थीटा इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। बताओ अब ये आंसर मैं दे दूं या फिर ट्राई करना चाहते हो क्वेश्चंस को? सो विल ट्राई। सर ट्राई। तो ट्राई करो, है ना, और मुझे ग्रुप पर बताना इन केस यू आर एबल टू सॉल्व इट, एंड सेंड योर सॉल्यूशंस ऑन द ग्रुप। इन केस देयर इज एनी इशू we will again meet and we'll discuss the solutions. ठीक है? यस सर। ओके। क्लियर बच्चा लोग? लिख लिया अपने पास, ये जो भी स्क्रीन है ये लिख लिया, यस सर। यस सर। ये वाला लिख चुके हो पार्ट, यस। दिस वन, यस सर। नेक्स्ट वन, यस सर। दिस वन, यस सर। ये वाला भी, यस सर। दिस वन इज ऑल्सो डन, यस सर। ये वाला, यस सर। ये भी क्वेश्चन क्लियर था ना सबको, ए और बी कैसे एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये भी फंडा समझ में आ गया कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करेगा तो क्या करना है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वल टू 0। राइट। अच्छा, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर हो गया था पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से, है ना? यस सर। ठीक है, ऑल राइट, सो ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। लेट अस मीट द नेक्स्ट टाइम विद योर सॉल्यूशंस। आप लोगों को अपने सॉल्यूशंस बनाने हैं और जहां दिक्कत आए मुझसे पूछना है, ठीक है? यस सर। यस ऑल सर। राइट क्लास, थैंक यू वेरी ओके मच, सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।